Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today is 16th of November. Only 3 days in between for your SBI PO pre-examination. And this exam is going to be a very important exam in your life. Some small tips can help you to sail through this examination. First, now this is a time when you should focus all your energies for this exam. Now there may be some candidates, those have to appear for NICL AO main also. That is phase 2 examination. And they are asking, sir, we are also appearing for SBI PO. What should be our strategy? 3 days dedicate to SBI PO. If you have to appear for interview of RRB, devote equal time for RRB interview and SBI PO examination, because in IBPS RRB officer, you are at interview stage. So you cannot neglect that. That should be your strategy. But if there is no other examination is clubbed for you, give 100% to SBI PO examination. This is first. Second, next 3 days you should dedicate to your weakest subject. There are 3 subjects. Some people are very good in quant. Some people are very good in reasoning. Others are good in English. So you know your weak area. Dedicate the entire 3 days to your weakest link. It will give you best result. If you are weak in 2 subjects, devote equal time to both subjects. If you are weak in 1 subject, focus fully to this subject. Along with full length mock test, attempt as much as sectional mock test you can attempt for that subject. That is going to give you additional marks, and these additional marks may be required by you to clear the cutoff. I have seen people repenting for half a mark, quarter a mark, 1 mark after the result. And the only error which they might have committed is focus on everything. So once you know your strength area, forget that. Even if you will not read your strength area next 3 days, nothing is going to happen. Your strength is a strength. But if you devote time on your weak area in next 3 days, you may be able to get 1, 2, 3, 4, 5 marks additional. And these marks are very crucial in competition. So winning a competition lies in this strategy also. So now your strategy should be to follow the daily schedule which I am posting in morning. We are focusing on full length mock as well as sectional mock. So the moment you come to know you are weak in a particular subject, give your 100% for sectional mock of that weak area. The mock test link is available in description and comment column. Click the link, register, and take half yearly or yearly plan. Apply coupon code AA03. You will have 10% off and access to good quality mock test. If you have not taken this mock test that is suggested by me, still there is a time. You are going to compliment me after using it, because this is tough mock test. And these toughness prepares you for toughness in the real examination. The level of examination every time is becoming tougher and tougher. You have to be prepared for that. And for that you need a tough mock test which psychologically prepare you for the toughness of the real examination. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको SBI PO में जीत दिला सकती है. पहले अब कुछ लोग हैं जिनका NICL का सेकेंड फेज के एग्ज़ाम का कॉल लेटर भी आ गया. तो इनको बड़ा ध्यान से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब क्योंकि SBI PO आपका 20 या 21 को यदि है, तो आपको पूरी एनर्जी इस पे लगानी चाहिए.
NICL को अभी आप पोस्टपोन कर सकते हैं तैयारी को कुछ दिन के लिए। दूसरा, यदि आपका RRB का इंटरव्यू भी है साथ में, तो RRB के इंटरव्यू को जरूर 50% टाइम दीजिए, क्योंकि वहां पर आप फाइनल फेज तक पहुंच चुके हैं, और 50% टाइम आपको SBI PO को देना चाहिए। तीसरा, यदि आपका और कोई एग्जाम साथ में नहीं है, तो आपको 100% टाइम SBI PO को देना है, और वो 100% किसको देना है? जिस सब्जेक्ट में आप वीक है। ये जो 3 दिन होते हैं या 4 दिन होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एरिया पे आप कुछ भी काम करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली नहीं है। पर यदि आप वीक सब्जेक्ट पे काम करेंगे, तो जो ये इंप्रूवमेंट है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की, ये आपको जीत दिला सकती है। हर रिजल्ट के आप बात देखेंगे, कितने लोग रिपेंट करते हैं कि क्वार्टर नंबर से रह गया, आधा नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। और अधिकांश लोगों की यही गलती हुई होती है कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट की तैयारी की होती है आखिरी दिनों में। आखिरी दिनों में हमें केवल उस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए जो मेरा सबसे वीक है। यदि किसी के 2 सब्जेक्ट वीक हैं, तो दोनों को आधा आधा टाइम दे दीजिए। अगर एक सब्जेक्ट वीक है, तो उस पर पूरा टाइम दीजिए। और इस वीकनेस को दूर करने का तरीका क्या है? उस सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, और स्कूल लेवल किताबों से उस टॉपिक को पढ़ना। तो आपको मैंने डेली शेड्यूल दे रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट आपको करने के लिए कहा जा रहा है फुल लेंथ, वो आप करेंगे। साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट उस सब्जेक्ट के जरूर करेंगे जिसमें आप कमज़ोर हैं। और बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, आज आपको ये जरूर लेना चाहिए। कुछ लोगों को इसका लेवल टफ लगता है, और टफ इसीलिए रखा जा रहा है ताकि आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हों, क्योंकि एग्ज़ाम डे बाय डे टफ होते जा रहे हैं। और जिन्होंने पिछले 3 एग्ज़ाम दिए हैं, वो इस बात को मानेंगे कि जो लोग इस मॉक टेस्ट को करके गए थे, वो पहले से साइकोलॉजिकली तैयार थे, और वो अच्छा परफॉर्म कर पाए और अच्छा रिजल्ट ला पाए। यदि आप ये सोच के जाते हैं कि एग्ज़ाम आसान आएगा या मॉक टेस्ट का लेवल टफ है, तो आप वहाँ पर जाकर पछताते हैं रियल एग्ज़ाम में। और अगर आप पहले से टफ एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट करके जाते हैं और वहाँ हल्का सा भी उससे आसान आ जाता है, तो आपके अंदर जोश आ जाता है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो पहले से वर्ड्स के लिए तैयार होके जाना और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर लेना, ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। जिन लोगों के पास ये मॉक टेस्ट नहीं है, वो आज भी इसको ले तो फ़ायदा होगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है। इसका हाफ ईयरली प्लान ले लीजिए, और कूपन कोड AA03 यूज़ करेंगे, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसको आप सेक्शनल मॉक्स पे जोड़ दे दीजिए आखिरी 3 दिनों के अंदर, और फिर आप अपने में परिवर्तन देखिए। ये जो आपके 1, 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़ेंगे ना इन 3 दिनों में, यही हो सकता है आपको अल्टीमेट विक्ट्री दिलाए। क्योंकि कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा नंबरों से फेल नहीं होता है। अधिकांश लोग मार्जिनली फेल होते हैं और बाद में रिपेंट करते हैं, पूरा साल निकल जाता है उनका। ठीक है, तो इसको गंवाना नहीं है मौके को। बहुत सुंदर मौका आपके हाथ में है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, इनको लागू करिए। ये अनुभव के आधार पर बताई हुई चीज़ें हैं। जो लोग इनको सीरियसली लेते हैं, उनको फ़ायदा होता है। और हर साल आप देखते हैं हज़ारों लोग इस चैनल के सक्सेस पाने में कामयाब हो रहे हैं, खासकर वो लोग जो इस सलाह को सीरियसली लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।